Good morning, children of class 9. The students of class 9, please pay attention. Today I am going to teach the second chapter of geography. The second chapter is Paraphysical Divisions of India. India is the seventh largest country in the world. Its location was given 2 days ago in the last lecture. Today I am teaching there are 6 paraphysical divisions of India. They are Greater Wall of India, that is Himalayas. Next, Northern Plain. Third, Thar Desert. Fourth, Deccan Plateau. Fifth, Purvanchal, which is also called the Land of Seven Sisters, and Archipelago. One by one, I want to discuss. Please listen carefully. The Greater Wall of India. The Himalayas are called the Greater Wall of India, situated in the north of India. Its length is 2400 km from west to east. Its breadth is 180 km maximum at some places and 80 km breadth in eastern parts of the Himalayas. There are 3 ranges in the Himalaya. The greater and the Shivalik range, which is called Outer Himalaya. Next is Lesser Himalaya, which is also called Himalaya. And third, from China side, is Greater Himalaya, which is also called Himadri. There are 3 ranges. In Himadri, there is highest mountain peak, the Mount Everest. That is 8,848 meter high from the sea level. 29,002 फुट हिंदी की किताबों में लिखे हुए. There are so many peaks: Kanchenjunga, Dhaulagiri, Mahendragiri, Annapurna, Godwin Austen, which is also called Mount K2. There are so many peaks. हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट सबसे हाई है और इंडिया की धरती पर हिमालय में जो सबसे उत्तुंग चोटी है उसको गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2 कहते हैं. There are 2 offshoots in both sides, eastern offshoots and western offshoots. In eastern offshoots, there are so many branches of the eastern Himalaya. They are Patkoi Hill, Lusai Hill, Naga Hill, Jaintia Hill, Garo Hill, and Khasi Hill. Mikir Hill also, which is located in Assam. In western side, there are 3 offshoots: Hindu Kush Parvat, Suleiman, and Tora Bora Hill. There are so many passes in the Himalayas. They are Bomdila Pass, which is located in Arunachal Pradesh, La Pass and Nathula Pass in Sikkim, Khyber Pass and Jojila Pass in Kashmir. Through Khyber Pass, 3 Chinese travelers came to India from China. They were Fahian, Wensong, and Yixing. They came here to study the Buddhist scripture Tripitak and Jatak. At that time, Nalanda University was in full swing. They
studied in Pali language in Nalanda University, and after studying they went back. हिमालय 3 कारणों से हमारे देश के लिए यूजफुल है। एक तो इतनी लॉफ्टी माउंटेन है कि कोई भी इन्वेडर्स नॉर्थर्न कंट्रीज से हमारे इंडिया पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन करता है। ये 5 जो दर्रे हैं, पासेज हैं, इसके थ्रू चाइनीज इंडिया में पहुंच गए थे। 1962 में इंडिया के नेफा और लद्दाख पर आक्रमण किया गया और उस वार में इंडिया हार भी गया। लेकिन अमेरिका के इंटरफ्रेंस के बाद वो चाइना अपने डिफेक्टो लाइन पर चला गया। चाइनीज सर्वेयर मैकमोहन जी आए और इंडिया और चाइना के बीच एक एलओसी तैयार किया जिसको मैकमोहन लाइन कहा गया। 3 तरह की लाइन हमारे देश में है। एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है उसको डुरांड लाइन कहते हैं। तो ये बात। दूसरी है कि इतना लॉफ्टी है कि साइबेरिया से जो कोल्ड वेव आता है उसको रोक लेता है और इंडिया इज सेफ्ट फ्रॉम कोल्ड वेव। अगर वो नहीं होता लॉफ्टी माउंटेन तो हम लोग कोल्ड वेव से मर जाते। और तीसरा है कि हिमालय के कारण ही मॉनसूनिक सीजन में घनघोर वर्षा इंडिया में होती है। चौथा, दैट इज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड इट इज फुल ऑफ हर्बल मेडिसिन ऑल्सो। तो ये रहा हिमालय का, जिसको ग्रेटर वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा, नॉर्दर्न प्लेन। इस प्लेन के 4 नाम हैं। नॉर्दर्न प्लेन 1, सेकेंड एलुवियल प्लेन, थर्ड इंडो गंजेटिक प्लेन एंड फोर्थ द बेसिन ऑफ गंगा, जमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। ये 4 नाम हैं। आज से 20,000 वर्ष पहले धरती पर 2 ही कंटिनेंट्स थे और दोनों के बीच में एक टेथाज समुद्र था। वो समुद्र कहाँ? तो आज के आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये 8 राज्य जो अभी हैं यहीं पर टेथाज समुद्र हुआ करता था। और इस समुद्र के नॉर्दर्न कोस्ट से लेके नॉर्थ पोल तक जो कंटिनेंट था उसका नाम था ल्यूसियाना कंटिनेंट। और इस सी के साउदर्न कोस्ट से लेकर के और साउथ पोल तक दूसरा कंटिनेंट था, इसका नाम था गोंडवाना कंटिनेंट। दोनों कंटिनेंट पर घनघोर जंगल थे, वर्षा काफ़ी होती थी और दोनों से सॉइल इरोजन के थ्रू सॉइल ट्रांसपोर्ट होके आता रहा और इस समुद्र में भरता रहा। ग्रेजुअली द लेवल ऑफ द सी फ्लोर केम अप एंड वाटर डिसअपियर्ड और कनेक्ट हो गया लैंड से दोनों कंटिनेंट और तब जाके एक कंटिनेंट बना और उसका नाम पड़ा पैंजिया, जिसका डिटेल्स हम फिर बाद में देंगे। नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारी नदियां बहती हैं। सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्रा, कोसी, गंडक, घाघरा, गंगा, जमुना, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। इतनी सारी नदियां गंगा से निकल के और इस नॉर्दर्न प्लेन पर बहते हुए आगे बढ़ जाती हैं। कुछ तो अरब सागर में, जैसे पंजाब की जो 5 नदी है वो सिंधु नदी में गिर के और अरब सागर में गिर जाती है। बाकी सारी नदी और 2 नदी है और नर्मदा और ताप्ती, ये भी अरबियन सी में गिरती हैं। एंड रिमेनिंग ऑल रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया बोथ फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। इस नॉर्दर्न प्लेन
ये इतना उपजाऊ है, इतना फर्टाइल है। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फूड सीरियल क्रॉप्स एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन इन प्लेंटी। यहाँ पर घनी आबादी है। देश के 100% पॉपुलेशन का 40% पॉपुलेशन इसी नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्टाइल लैंड है। जहाँ फर्टाइल लैंड होते हैं लोग वहीं पर बस जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। ये प्लेन में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत डेवलप है। 3 तरह के सेक्टर हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब केवल खेती बाड़ी नहीं, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट एक्टिविटीज, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ओलेरीकल्चर, एपीकल्चर और सेरीकल्चर। इसके साथ क्वारी और माइनिंग सभी एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। तो ये नॉर्दर्न प्लेन बहुत उपजाऊ है, जहाँ हर तरह के फसल होते हैं और कुछ फसल जो यहाँ नहीं होते वो दूसरे जगहों में होते हैं। तीसरा है थार डेजर्ट। दुनिया में डेजर्ट है क्या? वाटरलेस एंड ट्रीलेस, सैंडी एंड एरिड लैंड which is covered with sand is called desert। दुनिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं, उसमें कुछ का नाम ले रहा हूँ। सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट लोकेटेड इन अफ्रीका। गोबी डेजर्ट लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। एटकामा डेजर्ट इन चाइल इन साउथ अमेरिका। Patagonian desert in Argentina, also in South America. Kalahari desert in South Africa. Victoria desert in Australia. तो ऐसे टकला मकान डेजर्ट, अरबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड वेस्टर्न और राजस्थान डेजर्ट। ये डेजर्ट में इंडिया का जो डेजर्ट है जो राजस्थान में है, राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसको जो है लूनी। वो डेजर्ट होने के कारण आधा राजस्थान तो डेजर्ट है, आधा फर्टाइल है और रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बहुत सारे शहर हैं, बहुत देश की बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस डेजर्ट में जहाँ तहाँ ओएसिस हैं। ओएसिस क्या होता है? एक बात सुन लो। लैंड पर अगर लेक है, झील है, तो उसको लेक कहते हैं। अगर वही लेक समुद्र के किनारे है तो उसको लैगून कहते हैं। वही लेक अगर डेजर्ट में है तो उसको ओएसिस कहते हैं। एक ही बात 3 प्लेस पर अलग अलग नामों से। उस ओएसिस के पास लोगों की कुछ आबादी है, लोग बेडुइन्स ट्राइब के लोग रहते हैं। और जहाँ जहाँ थार डेजर्ट में ओएसिस है वहाँ देयर इज ह्यूमन सेटलमेंट और एकमात्र ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है एक कैरेवन ऑफ कैमल्स, दैट इज शिप ऑफ द डेजर्ट। उसी शिप से सामान सभी सातबल भूमि सभी ये ओएसिस तक पहुंचाए जाते हैं जहां पर लोग रहते हैं। और दिन में प्रचंड गर्मी पड़ती है, दिन के 10 बजे से लेके और 2 बजे तक तूफानी हवाएं चलती हैं जिसमें बालू उरुड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिसको सैंड ड्यून कहते हैं। वहाँ की जो फसल है वो मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, यही सब उपज है। बाकी फसल अनाज सब ईस्टर्न साइड से वहाँ पहुँचते हैं वेस्टर्न डेजर्ट में और लोगों का खाना पीना चलता है। उसके बाद है डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो इज द ओल्डेस्ट फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि जो पैंजिया का टेक्टोनिक प्लेट टूट करके और 6 पार्ट में डाइवर्ज कर गए जिससे 6 कंटिनेंट बने। एशिया अपने जगह पर आ गया, लूसियाना के से एशिया बने, यूरोप बने और नॉर्थ अमेरिका बने।
गोंडवाना का 3 पार्ट करके 3 डिफरेंट प्लेस पर अवस्थित हो गया, जिससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बना। ट्रेनिंग शुड बी टॉट टुमारो बिकॉज इतनी सारी बातें 1.5 GB का है मोबाइल, उसमें सब बात नहीं आ पाता है, तो बाकी कल एक्सप्लेन किया जाएगा।